वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विथ लॉ। आज हम सॉल्व कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस का 2016 का क्रिमिनल लॉ का पेपर। टेस्ट बुकलेट सीरीज़ है 8। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, criminal liability is best explained by the maxim actus non facit trium nisi mens sit tria. It is correct. Second option, for criminal liability the actus should be reus. It is also true. So first is correct, second is correct, third option, the word actus reus only includes act but not omission. It is incorrect. Fourth, the actus reus of omission is well illustrated in R versus Horsey. It is incorrect. So इसमें हमें incorrect बताना था. So इसका correct option होगा third and fourth are incorrect. C option is correct. Next is question number 2. In which of the following cases the court held that attempt to do an impossible act will amount to an offense? So ये कोर्ट ने हेल्ड किया था आर वर्सेस गुडबॉल के केस में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, मेंस रिया मीन्स गिल्टी नॉलेज ऑफ द रॉन्ग डूअर। नहीं, मेंस रिया होता है गिल्टी इंटेंशन नॉट नॉलेज। सो ये है इनकरेक्ट। सेकेंड इज IPC does not negate mens rea but requires mens rea of a specific kind. So it is correct. Second option is correct. Third is offense of kidnapping and abduction are punishable without mens rea. It is also correct. Fourth is mens rea is basic ingredient in a crime. It is also correct. So इसका correct option अगर हम देखें तो ये है second, third and fourth option are correct. So option C is correct. Question number 4. Section 61 and 62 of IPC dealing with absolute forfeiture of all property of the offender have been abolished by which amendment? So A option, Act 16 of 1921, इससे इनको abolish किया गया था. Next is question number 5. Which of the following statement is not correct? Option A, both statement 34 and 149 are of IPC create स्पेसिफिक ऑफेंस. तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि 34 स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है. सेकेंड, बोथ सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ IPC रिलेट टू डॉक्ट्राइन ऑफ विकेरियस लायबिलिटी. इट इज़ करेक्ट. थर्ड इज सेक्शन 34 फिक्स ए मिनिमम ऑफ 2 persons who must share common intention while section 149 required that there must be at least 10 persons. नहीं, यहाँ पे 5 persons होने चाहिए. ये भी इनकरेक्ट है. Fourth one is some active participation is necessary under section 34 but section 149 does not require it. Mere member of unlawful assembly with common object is sufficient. So it is also correct. Fourth option is correct. So इसका हमें देखें तो इनमें से इनकरेक्ट है ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड. So correct option should be C. फिफ्थ का C option is correct. Next is question number 6. In which of the following cases the court held that when can under trial prisoner was put in a separate cell only as a precautionary measure to ensure his non-mingling with other prisoners and for his security, it does not amount either to solitary confinement or cellular confinement. So ये first option is correct. Paravillian versus IG प्रिजन मद्रास की केस में हेल्ड किया गया था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. मैच लिस्ट फर्स्ट विच इज सेकेंड की बात करें. चैप्टर 21 डील करता है डिफेमेशन से. चैप्टर 20 डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज से. चैप्टर 16 डील करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी. 17 डील करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग प्रॉपर्टी. सो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड. करेक्ट ऑप्शन देखते हैं थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. एफ्री की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 159 IPC में. ट्राइफल्स की बात करें सेक्शन 95 IPC. मिसचीफ की बात करें 425 IPC. क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करें तो है 503 IPC. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर्स नॉट करेक्टली मैच। सो 9 की बात करें, केशव साहू वर्सेस सालिग्राम सेक्शन 79 IPC, इट इज़ ट्रू। सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान सेक्शन 80 IPC। सी साउथवर्क लंदन ब्रॉक काउंसिल वर्सेस विलियम सेक्शन 81 IPC। टी बबलू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Assertion, there is either theft or extortion in the offense of robbery, it is true. Theft and extortion precede robbery, it is also true. So both statements are correct and R is correct explanation of A option is correct. Next is question number 11. The punishment for the harassment of a woman by her husband or any of his relatives with a view of coercing her or any other person relating to her for dowry is imprisonment for a term which may extend to, so ये है C option 3 years. Next is question number 12. Which of the following cases is not related to the offense of dowry death? A option कामेश पंजियार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बी ऑप्शन कुंदुलाबा सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सी बदरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डी प्रेम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC punishes for causing death of resulting in persistent vegetative state of victim during the commission of offense of rape? सो इससे रिलेटेड सेक्शन है 376A ऑफ IPC, ये इसके पनिशमेंट से डील करता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. सोनू सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, दिस केस इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ। सी ऑप्शन इज करेक्ट, डेकॉइटी के ऑफेंस से रिलेट करता है ये केस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. Any person who commits the offense of showing pornography to any woman against the will of the women shall be punished with rigorous imprisonment of a term which may extend up to, तो ये 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। सो 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, मैच पार्ट करने हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 354A ऑफ IPC। नेक्स्ट इज बी इज शॉकिंग, ये है 354D ऑफ IPC। थर्ड इज वॉयरिज्म, 2013 से ऐड हुआ था। सी का सेकेंड ऑप्शन 354C ऑफ IPC। डी का है फर्स्ट 354B। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, इसमें मैच पार्ट करना है। वॉलेंट्री थ्रोइंग और अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड, इसका इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 14 years, नॉट लेस देन 5 years, अप टू 7 years। सेकेंड इज करेक्ट। बाइंग माइनर फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा, इसका इम्प्रिजनमेंट है नॉट लेस देन 10 years। अगर हम सी की बात करें तो इसका इम्प्रिजनमेंट है नॉट लेस देन 20 years, और डी की बात करें तो इसका इम्प्रिजनमेंट है रॉबरी अगर आप सनसेट और सनराइज़ के बाद 14 years। डी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की, तो ए का सेकंड बी का थर्ड सी का फोर्थ डी का फर्स्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है। सो फर्स्ट इज बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक्सटॉर्शन नहीं। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस प्रभु, राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं। सी यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये एडल्ट्री से रिलेटेड है, ये करेक्ट है। वसुदेव वर्सेस पेप्सू, डिफेमेशन नहीं है, इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, सो ये भी हुआ गलत। सो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू IPC? फर्स्ट इज nothing is an offense which is done in right of private defense, true. Second is a person has right to defend his own body only and not of others, ये हो गया गलत। थर्ड इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एक्सटेंडेड टू कॉज डेथ इन डिफेमेशन केस, नहीं।
Fourth option, a person has even right of private defense where there is a time to have recourse of protection of public authorities. It is also incorrect. So इसका हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओनली, और हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. किडनैपिंग फॉर रैंसम एटसेट्रा इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC? 20 का डी ऑप्शन इज करेक्ट. 364A of IPC. Next is question number 21. In which of the following case the Supreme Court held that the provision of section 141 of Negotiable Instrument Act do not contain condition that the prosecution of a company sine qua non, यानी कि important for prosecution of other persons, liability of directors officers is vicarious and will flow from the liability of company and firm. 21 का अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की डी ऑप्शन इज करेक्ट. मोहम्मद इसाक कुलशानी वर्सेस राजमौली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब तक ये कंप्लेन नहीं की जाएगी. कितना टाइम होगा कंप्लेन करने के लिए? 1 महीने के अंदर अंदर. ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. चैप्टर 27 वॉज इंसर्टेड into Negotiable Instrument Act by the Amendment Act of the year. So ये चैप्टर इंसर्ट किया गया था 1988 के अमेंडमेंट से. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तो इसमें बात करें कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस सेक्शन 142 में दिया जाता है 4. नेक्स्ट इज पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरीली 143 सेक्शन. डिफेंसेस विच में नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन 140. और प्रिजम्पशन की बात करता है 139. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ 4, 3, 1 एंड 2. ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. अ कंप्लेंट अगेंस्ट इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैसी होनी चाहिए? हमेशा रिटर्न कंप्लेन होनी चाहिए. 25 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. इसमें मैच पार्ट करने हैं एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी की बात करें तो ये किस में दी हुई है? सेकंड एक्साइज रेवेन्यू. थर्ड है मोलासिस. मोलासिस हमें पता है ये है 2Q में. मोलासिस है आपका 2Q में. नेक्स्ट हो गया आपका व्हीकल दिया हुआ है आपका, देखते हैं सी का सेकंड ऑप्शन. सी का सेकंड ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट. हमें यहाँ एक पता था बट इस तरह से भी जब हमें नहीं आंसर पता हम कर सकते हैं. ए का फोर्थ इज करेक्ट. 2G में आपकी एक्साइज या काउंटर वेलिंग ड्यूटी दी हुई है और आपका सेकंड का थर्ड इज करेक्ट. बी का थर्ड यानी कि 2I में एक्साइज रेवेन्यू और व्हीकल की बात करें तो 2Z भी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. Who of the following is the power to close liquor vents on the ground of rights? अगर राइट्स का केस है तो उस कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर आ जाती है. 27 का जी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. इफ एनी लाइसेंस होल्डर और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ सेल्स और डिलीवर एनी लिकर टू एनी पर्सन अपेरेंटली अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? तो इसका आंसर है 10,000 रुपीज़ बट नॉट लेस देन 2,000 रुपीज़. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. हालांकि अमेंडमेंट के बाद अब ये पनिशमेंट बढ़ चुका है. क्वेश्चन नंबर 29. पेनल्टी फॉर मिक्सिंग नॉक्शियस सब्सटेंस विद द लिकर ये दी हुई है आपकी, देखना पड़ेगा. इसके हम डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं. 29 का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड. थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, लास्ट एंड सेकंड. पेनल्टी फॉर मिक्सिंग नॉक्शियस सब्सटेंस विद लिकर इसकी बात करें तो सेक्शन 41 में है. डिस्पोजल ऑफ सीज लिकर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल सेक्शन 1665. पेनल्टी फॉर अनलॉफुल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर इसकी पेनल्टी दी है सेक्शन 39. और पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट लिकर शॉप इसकी पावर दी हुई है आपको सेक्शन 8 में. सो 29 का भी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैटर रिलेटिंग टू एक्साइज आर vested in the financial commissioner. It is true. Peace. Financial commissioner has the power to establish or licensing distilleries, breweries, warehouse. ये भी सही. तो दोनों यहाँ पे सही हैं. देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन.
बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, नहीं सो दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं. सो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 30. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल. ये आपको देखना पड़ेगा, इसमें है 31 का सी ऑप्शन इज करेक्ट. यहाँ के इज नॉट अ व्हीकल. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. National Board for Wildlife has been constituted by the central government with effect from 22/9/2004. The Prime Minister is the chairperson of National Board of Wildlife. ये तो सही है. The office of member of National Board of Wildlife shall be deemed to be the office of profit. ये गलत है. Next is the chairman of Human Rights Commission is a member of National Board of Wildlife. इसका आंसर देखते हैं 32 का. सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है. फर्स्ट इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है. ओके सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज 32 का करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. द प्रोविजन दैट नो वाइल्ड एनिमल शैल बी ऑर्डर टू बी किल्ड unless chief wildlife warden is satisfied that such animal cannot be captured, tranquilized, translocated under section 11 of wildlife protection act. इसको इंसर्ट किया गया था किस अमेंडमेंट से. तो 33 का ये ऑप्शन इज करेक्ट, एक्ट नंबर 16 ऑफ 2003. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज area comprised within any reserve forest or the territorial water C1 can constitute as a sanctuary. Second, no person shall tease or molest any wild animal or litter the grounds of sanctuary. Third is the chief wildlife warden cannot grant to any person permission to enter to sanctuary for photography. A person can use sanctuary chemicals, explosive or other substance with the permission of chief wildlife warden. So 34 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इज करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. अंडर which section of wildlife protection act the provision exists that no person shall tease. ये 38J में बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड. ट्री की बात करें तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट. 2/7 में ट्री है. फॉरेस्ट की डेफिनेशन है 2/4 में. रिवर की डेफिनेशन है 2/5 में और कैटल की डेफिनेशन है 2/1 में, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू एस्टैब्लिश अ फॉरेस्ट कोड. तो फॉरेस्ट कोड को सेक्शन 17 में एस्टैब्लिश किया जा सकता है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. Next is the district magistrate or magistrate of first class may try summarily any forest offence punishable with imprisonment of a term not exceeding. 38 का भी ऑप्शन इज करेक्ट. 6 month तक का मैक्सिमम पनिशमेंट है तो उसका समरी ट्रायल हो सकता है. 38 के बाद 39. इसमें मैच पार्ट करने हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से. पावर टू इम्पोज ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो सीजर ऑफ प्रॉपर्टी लायबल टू कॉन्फिस्केशन. थर्ड में पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल सीजर, पावर टू मेक रूल्स ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. सो ये हम डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं. 39 का ए ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड देखते हैं. थर्ड इज थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट एंड डी का सी का फर्स्ट, जी का सेकंड. सो ये ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. टाइटल ऑफ चैप्टर एंड चैप्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. पेनल्टी एंड प्रोसीजर. कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड्स नॉट बीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. डी में ऑफ कलेक्शन ड्रिफ्ट ऑफ स्ट्रैंडेड टिम्बर. सो ये हम डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं. इसका सी ऑप्शन करेक्ट. थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड. थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड.
यानी कि पेनल्टी और प्रोड्यूस दिया हुआ है चैप्टर 9 में। कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड्स नॉट बीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, ये दिया हुआ है चैप्टर 5 में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दिया हुआ है 4 में, और ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट एंड स्ट्रैंडेड टिम्बर चैप्टर 8 में। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. In which of the following case Supreme Court held that at the stage of framing of charge, materials and document filed by the accused cannot be considered. Material produced by the prosecution alone is to be considered. So ये किस केस में कहा गया था? ये 41 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवेंद्र नाथ पहाड़ी के केस में कहा गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42. CRPC के अकॉर्डिंग मैच पार्ट करने हैं। कंप्लेन दिया हुआ है 2D में, इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है 2H में, इंक्वायरी दिया हुआ है 2G में, विक्टिम दिया है 2WA में। सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years? ये है असिस्टेंट सेशन जज के पास पावर, तो 43 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. Under Section 53 of CRPC, examination of accused by a medical practitioner is at the request of police officer. So police officer सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। 44 का भी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45. Procedure when police officer deputes his subordinate to arrest without warrant is given under 45 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, given under Section 55 CRPC. 46 में विच मैच पार्ट करने हैं। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन सेक्शन 106, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, सो ये है सेक्शन 109। गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर सेक्शन 110। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस सेक्शन 107। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 46 का करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next is question number 47. In which of the following cases the Supreme Court held that the law does not mandate taking of prior permission to further investigation of carrying out further investigation even after filing of charge sheet? So ये किस केस में हेल्ड किया गया था? State of Andhra Pradesh versus ASP, A option is correct. Next is question number 48. Which of the following statement is not correct? The term charge is defined under 2B, it is true. Next is the charge should be clear and specific, it is also true. It must refer to the section of the IPC under which of the following offence is charged, it is also true. There is no need to write the charge in the language of the court, it is false, the option is correct. Next is question number 49. Which of one of the following offences tribal summarily under CRPC? So wrongful restraint, abduction in order to murder, house trespass, and fourth one is offence not punishable with death, imprisonment for life, or a term exceeding 2 years. The option is correct. Next is question number 50. Anticipatory bail का मतलब है A option, that the accused gives an undertaking to the police officer that he will be available for investigation provided he is not arrested. B option, the direction by the magistrate to the police officer not to arrest the accused. C, the direction by the session court or high court to the police officer to release on bail an accused alleged to have been committed a non-cognizable offence in the event of his arrest on the terms and condition. Direction of high court or session court to release accused immediately after arrest in case of non-bailable offence. So इसका एंटीसिपेटरी बेल में डी ऑप्शन इज करेक्ट। नॉन कॉग्निजेबल में तो एंटीसिपेटरी बेल लगती ही नहीं है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड 2016 का हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का क्रिमिनल लॉ का पेपर। मिलते हैं आपको नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो मोर सच वीडियोज़।